हमारे कंट्री में जो लोन रेट्स हैं वो बहुत हाई हैं। हम सुना करते थे कि वो ROE पे बनते हैं, विच इज़ रिटर्न ऑन ईगो। इट्स लाइक मेकिंग योर होम 100 टाइम्स। विल द बेस्ट रिमेन द बेस्ट? आंसर इज नो। डेट वेट खत्म, खलास, एंड यू आर फ्री। चार धाम की यात्रा करने का मतलब आप सीधा मतलब ऊपर आप जाओगे। ऊपर क्रिकेट मैच सबसे बड़ी नहीं हो सकता। लग्जरी इज ऑलवेज लिमिटेड। लग्जरी इज ऑलवेज लिमिटेड। गोवा की स्टोरी थोड़ी सी फिजल आउट होती हुई दिख रही है। स्टॉक मार्केट को मैं बहुत अच्छे से समझता नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी समझता। और ब्रोशर पे माल बेच दिया, रह क्या गया? अधूरा प्रॉमिस। Thank you so much, sir. From humble beginning to pinnacle of success as managing director of JLL. So, how was this journey? First of all, thank you very much, Gaurav, for having me on your lovely channel, Homegram. It's my pleasure, sir. I've been looking at stuff that you do, which is very knowledgeable, and it gives great insights to the buyers and to your customers. Thank you. Fantastic work that you're doing. To your questions, humble beginnings, yes, of course, and still very humble. Lots done, but a lot more to be done. I am an architect by qualification, a hotel investment consultant by profession, but a hotelier by heart. Wow. That's how I sort of sum it up, or Right. whatever I've been doing. Right. So, how was your initial journey, sir? So, I really want to understand what was the first in hand salary. So, how you started your journey? How come hospitality sector? So, please do let us know. Yeah, sure. It's well, as you said, humble beginnings. The first salary was what? A stipend when I came out of the architecture school was 3,500 rupees. But it was a great value at that time. I'm not revealing my age or the time. This is about 20 years ago. Okay. But yes, that's how the markets were, and that's what architects used to get as a stipend when I joined the erstwhile company, which was not JLL at that time, but a company which merged into JLL, a company called Chesterton Meghraj, when I joined that as a property researcher. And you see, data was not there in the markets. Real estate markets were very unsyndicated, Right. and very unstructured. So you could really go on your motorbike to fend data and to fetch data. So you would stand in a newly built office building and just look at tenants and the signages, and then you would know that so much is the floor plate, so much is the size of this building, so therefore this tenant is occupying this much space. तो वो हम कॉपी पेंसिल पे लिख लेते थे. तो उस तरह से करते करते हमने प्रॉपर्टी रिसर्च शुरू करी. Right. And similar was the case in residential property markets. They were also very unsyndicated. Data नहीं होता था. As a banker, for example, जो banks loan देते थे home buyers को, उनके पास भी data नहीं होता. तो वो हम जैसे लोगों को hire करते थे कि what do you know about this market? What do you know about this developer? Do you think this 1,800 square feet of a flat should cost so much? So we would again do, and how would we know? जब आपके पास data नहीं है as a bank, आपके पास data नहीं है as a home buyer, मेरे पास भी data नहीं है as a consultant or as an advisor or as a broker. तो फिर हम खुद, as I said, homework, जाए वहाँ गए, and you will talk to maybe 10 people and then figure out कि यार ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है, लेकिन कुल मिला के शायद ये सच होगा. And that's how we would come to a conclusion. Right. Now, which was at that time it's called primary research.
So early second, days of internet. early days. Google was there, but obviously was not as populated as it is today. Right. Google also didn't have those data points, Right. right? So that's what we used to do, frankly. And उससे होता क्या है कि जब आप किसी मार्केट में, या कहते हैं ना जैसे आप पैदल चलते हो, तब आपको किसी रोड का या किसी रास्ते का सबसे ज्यादा पता चलता है. अगर आप गाड़ी में पीछे बैठे हो तो आप रास्ता नहीं ढूंढ पाते. Right. तो हम क्योंकि पैदल चले, and you know we were on the road and on our feet all the time, so we could get that sense of the market, whether it was residential, it was commercial. शॉपिंग मॉल्स होते नहीं थे, तो वो शॉपिंग मॉल्स की स्टोरी बननी शुरू हुई. तब तो सिर्फ हाई स्ट्रीट मार्केट्स होती थी. Right. कनॉट प्लेस चले गए, खान मार्केट चले गए, पंडारा मार्केट चले गए, Society shops. सोसाइटी शॉप्स होती Unauthorized थी, shops. अनऑथराइज शॉप्स होती थी. फिर मॉल्स बनने शुरू हुए तो हमने मॉल्स पे इसी तरह से, दैट्स हाउ अगेन रेंटल क्या है, ऑक्यूपायर कौन है, पार्किंग कितनी है, कहाँ करोगे, कस्टमर हो तो कैसे जाओगे. सो ये सब एनालिसिस करते करते हमें साइकोग्राफिक्स आ गई, जिसको मैं बोलता हूँ. और उस चीज उन सब, आई थिंक दोज लर्निंग्स, एज यू सेड, were very humble learnings, and those I would say are still profound, because उन्होंने हमें ग्रेविटास दिया. Right. और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, हमारे टाइम के और भी जितने लोग हैं जो इस तरह से प्रॉपर्टी मार्केट्स में आए, उनके इसी तरह के तजुर्बे रहे हैं, और आज की डेट में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल तजुर्बे हैं. और जो हम आज कर रहे हैं, आई थिंक ये उन्हीं सालों की मेहनत है, और वो हम्बल बिगनिंग्स की का रीज़न है जो यहाँ तक पहुँचे. बहुत सब. सो ग्राउंड रियलिटीज, हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं हुई तो ग्राउंड रियलिटीज हमेशा से साथ थी. हाँ, बिल्कुल. राइट. सो हाउ वाज अर्ली डेज ऑफ JLL, Oberoi? So please share that journey also. Yeah, well, you see, that ways my career journey has been very simple. I call it JLL, Oberoi, JLL. So I call it in many ways, it's Delhi, London, Delhi. Right. So that's the only flight that I took, and I took a return flight too. So I worked in JLL for about, and its earlier or erstwhile Avatar for about 7 years. And as I said, across 7 years, I touched on various property markets, property sectors, and a lot of learning there. And then by virtue of doing what I was doing, my then chairman, Mr. Anuj Puri, he compelled or convinced me to take hotels as an advisory business and an asset class. We never used to do hotels, and hotel markets उस time पे बहुत ही ज़्यादा immature थी, right? And it was a very organized थी, but the brands were like Taj, Oberoi, ITC, and then a few Hyatts and a few Marriotts which were just building. And the growth story was happening, so he convinced me that we should start this practice, and I did. Then JLL Hotels happened. So our whole business was then bought over by JLL Hotels. And then while doing that, Oberoi was one of my premier clients and a very prestigious clients. And जब उनके projects कर रहा था तो मैं Mr. Oberoi के late Mr. PRS Oberoi के टच में आया, और वो affiliation बहुत ही बढ़िया affiliation निकली. And I didn't know कि ultimately I will land into the Oberoi Hotel Group one day as an employee in the chairman's office, because there was a time when Mr. Oberoi asked me that, will you like to work with me? And I said, Mr. Oberoi, but I'm working with you. So he says, no, my dear chap, you're working for me. तो तब मुझे English grammar जो हम पढ़ते रहते हैं पर हम समझते नहीं हैं, उस दिन मुझे समझ में आई कि ये prepositions का फर्क क्यों है. There is a difference. तो मैंने I went back home. Obviously, I heard him and I was very elated. Then I asked my father, I said, what should I do? He says, you'll be foolish if you don't go to him. Go grab the opportunity. Yeah, but then I asked Mr. Oberoi, I said, Mr. Oberoi, I don't know anything about hotels. मैंने होटेलरिंग नहीं करी है, ना मैंने होटल ऑपरेशंस करे. तो he says, very good. Because I have a lot of people around me who know a lot about hotels, but you tell me what you do, which is bricks and mortar, which is hotel real estate, which is what happens around it, which could be luxury retail, leasing कैसे होगी, अगर हमें investments करनी है तो क्या करना चाहिए, ऑपरेटर कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं तो कैसे करने चाहिए, और वो सब मेरे को आते थे या मैं कर रहा था. तो देन आई जॉइंड, एंड देन आई हैड अ lovely association with him, and I had a great life. I mean, how big was Oberoi at that time?
Well, we were, sorry, I still say we, and that we doesn't go out. Right. But at that time, Oberoi was about, I would say, 30 hotels, Okay. 20 in India, 10 overseas. Hmm. Out of 20, 10 were Tridents, 10 were Oberois. Hmm. So it was a very fair mix of the portfolio. But when I joined him from 2000, I would say 10, 11 to about 18, every year we opened one hotel. Wow. So which was actually not a big deal, let's say for a Marriott or a Hyatt or a Hilton. Hmm. They grow like that. Hmm. They're But being a Indian brand, but this is a Indian big brand, luxury brand, right. and you can't do too many things Hmm. because the markets are not mature enough to handle that luxury and that price point. So our growth was limited, but also consciously limited, Hmm. because luxury is limited. Right. You cannot have unlimited luxury, and Right. we will talk about it when we talk about branded residential and residential, etc. Hmm. Because luxury is a very unique term and it is very misused term. Nowadays, it is very common to use this Very, word. yes, it's a buzzword. Yes. But then luxury in real sense is limited, Right. and that's why it's luxury. Right. तो हमने हर साल एक होटल खोला अलग अलग देशों में, अलग अलग मार्केट्स में. दैट मीन्स एक होटल खोलने के लिए 4 या 5 साल की मेहनत लगती है. Hmm. तो वो मेहनत हम करते रहे, वन आफ्टर द अदर, और होटल खुलते गए. एंड वी टच्ड अबाउट 40 होटल्स एट दैट टाइम across the globe, and it was, as I said, a very, very fruitful journey for me personally, because I learnt a lot, and there are so many stories. तो मेरे एक बड़े अच्छे अजीज दोस्त हैं, राजा साहब, from a royal family. I'm very fond of him, from Chandigarh. He told me, he says, Jaideep, लाइफ में ना स्टोरीज ऐड करनी चाहिए, पैसा आ जाता है. और मिस्टर ओबरॉय ने वो स्टोरीज ऐड करनी सिखाई, one after the other. And there are many anecdotes, that I have. So yes, so from 2010 to 18 was that time when I learned so much about hotels and hoteliering and business, and hotel real estate. Then I requested Mr. Oberoi to let me go, because whatever I was supposed to deliver, I did. I delivered. And at that time, the then the CEO of JLL in India, Mr. Ramesh Nair, he was my old colleague also. So he asked me to come back and restart this practice of hotel consulting and brokerage business, which I'd been doing a few years ago before leaving. So literally, I took the flight back from London to Delhi. Great story. So, sir, as from the ground realities, from the nascent stage, from building a hotel, developing it, taking it to a level where the return on investment, and then coming on a level where you see the break-even point. So I really want to understand the aftermaths. So a typical 5-star hotel, what kind of cost is involved, how you developed it, and apart from that, how you identify the region, how you see the data points that this is the return on investment which can come. So you can share the aftermaths. So Sure. Someone who really wants to listen it, who really wants to understand how to open a 5-star hotel, it will be a very good conversation for them. Yes, definitely. No, I mean, see, whatever you just said, I will just change the, let's say, the pecking order. Right. So it starts from market, and naturally, what is the fundamental in that market? Is it driven by business? Is it driven by leisure? There are two types of guests that you will have in hotels. One is, which is business guest, because that's your requirement. That's why you travel to A city or B city, or you're a leisure customer. That means you're on a holiday. Yes. Pilgrimage also comes in leisure, by the way, in our broad terms, right? So market define करती है कि किस तरह का होटल आना चाहिए. Site define करती है कि किस तरह का होटल आना चाहिए. That means कि आप, are you overlooking some natural feature? Do you have some views from the room? How big is the plot? Can you do banqueting? What size of banqueting? How will the cars come in and come out? Right? So वो fundamentals decide करते हैं कि किस तरह का होटल आना चाहिए. और तीसरी चीज होती है कैपिटल. आप, हो सकता है आपके पास मार्केट है, लेकिन आपके पास हो सकता है उतना पैसा नहीं है कि मेरे को 5 स्टार बनाना है, और आपका लैंड बहुत वैल्यूएबल है.
राइट. तो आप कहते हैं यार अब मेरे को किसी तरह से अपनी मैथ्स बिठानी है। हम्म. कस्टमर दोनों के हैं, हम्म. 4 स्टार का भी है, 5 स्टार का भी है, तो बेस्ट क्या होना चाहिए यहाँ पे। फिर हम मार्केट को देखते हुए, कैपिटल कैपेसिटी को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। देन इज द कंस्ट्रक्शन स्टोरी, राइट. which is also nowadays becoming very professional. Hmm. So you have professional contractors who do it. JLL does it. We do project development services as well. So we build your hotels. And we actually do everything from buying a hole in the ground, call it a land, to buying cutlery. हम Wow. JLL में सब कुछ करते हैं in this hotel asset class. So उसमें फिर हम रियल एस्टेट डेवलपर्स हों या प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स हों या इंडियन कॉर्पोरेट्स हों या फैमिली ऑफिसेज हों, हम उनको उस तरह से इन्वेस्टमेंट्स जो है असेस करके देते हैं। और उस हिसाब से आप यू रेज कैपिटल आइदर थ्रू योर प्राइवेट इक्विटी जो आपकी कैश फ्लो से आती है, और दूसरा बैंक्स। सो द बैंक्स विल प्रोवाइड यू डेट। एक और मेट्रिक है जो मैं सब इन्वेस्टर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि करें, द फाइनेंशियल प्रूडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेक्टर। जब आप डेट लेने जाते हैं तो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है उसका डेट 50% होना चाहिए, मैक्सिमम 60%। जहां आप उससे ऊपर टपे वहां यू स्टार्ट वर्किंग फॉर द बैंक्स, नॉट फॉर योर बिजनेस। फिर आप लोन ही चुकाते रहोगे। फिर आप ऑपरेटर को बोलोगे यार ये होटल अच्छा नहीं कर रहा, यार बैंक्वेटिंग का रेट बढ़ाओ, यार रूम का रेट बढ़ाओ। अब रूम का रेट, बैंक्वेटिंग का रेट मार्केट ड्रिवन रहता है काफी हद तक, तो आप मार्केट के अगेंस्ट नहीं जा सकते बढ़ाने के लिए। तो अल्टीमेटली आपको अपनी फाइनेंशियल प्रूडेंस देखनी है इस बिजनेस में खासकर, बिकॉज ये एसेट क्लास वन ऑफ द फ्यू एसेट क्लासेस है रियल एस्टेट में जिसमें आप ब्रोशर पे नहीं बेच सकते। आई कैन अंडरस्टैंड। आप हाफ बिल्ट भी नहीं बेच सकते, आपको पूरा बनाना ही पड़ेगा। राइट। इट्स लाइक मेकिंग योर होम 100 टाइम्स, बिकॉज आप एक बार घर बनाते हो, आप सबसे अच्छा अपना बेडरूम, अपना बाथरूम, अपना शावर, अपना एक से एक अच्छी चीज शैंडलियर भी लगा देते हो, पर वो आप एक बार करते हो। होटल में वो आपको एक ही चीज 100 बार करनी है। सो आप सोचिए कितना पैसा उसके पीछे जा रहा है, और जो आपका गेस्ट है उसने वो जो आपने 100 बार करा उसने उसको शायद 1 लाख बार यूज करना है, बिकॉज यू सेल अ होटल एवरी नाइट। राइट। Unlike any other form of real estate which you sell on paper or as land or as a built form and you convey, इसमें आप convey नहीं करते till the time you sell a hotel, overall the real estate। तो इसलिए financial prudence बहुत ज़रूरी है, capital intensive play है, और इसीलिए आप देखते हैं कि सारे real estate developers ये काम नहीं करते। राइट। जो रेजिडेंशियल कर रहे कैपिटल हैं, बहुत बड़ा लगता है। कैपिटल बहुत बड़ा लगता है, तो आपका वो कैश फ्लो होना चाहिए। होना चाहिए। So, if we see in India from past almost 10-15 years, especially hospitality chains, now they are doing well even after this pandemic. So, as an investor, if we look into this venture, so how good it is? Because investor, in my terms, they only think about one part, that is ROI. So, एक एस्टिमेटेड कितना पैसा लग जाता है, कितने साल में ब्रेक इवन आया था अगर एक अच्छा होटल, एक अच्छी आप सर्विसेज देके एक एस्टैब्लिश प्रॉपर्टी बनाते हो? पहले क्या होता था गौरव के, पहले ना जब होटल्स बनते थे तो हम सुना करते थे कि वो ROE पे बनते हैं, विच इज रिटर्न ऑन ईगो। अब थैंकफुली मार्केट्स मैच्योर हो गई हैं, इन्वेस्टर्स मैच्योर हो गए हैं, जो होटल्स में आ रहे हैं वो ROE की वजह से नहीं आ रहे, वो ROI की वजह से आ रहे हैं। आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बिकॉज 20 साल पहले मुझे ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं था कोई। आप बोलते थे आप 100 रुपया लगाओ, वो कहते नहीं जी मैं तो 200 लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को आई वॉन्ट टू बिल्ड द बेस्ट, मेक इट बिगेस्ट, रिटर्न आए ना आए। अब हर चीज बहुत ज्यादा प्रूडेंट होती जा रही है, राइट। और उसी वजह से हमारी प्रॉपर्टी मार्केट्स, होटल प्रॉपर्टी मार्केट्स जो हैं वो मैच्योर हो गई, लाइक इट यूज्ड टू बी इन यूरोप और अदर पार्ट्स ऑफ एशिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ US। सो अब जो इन्वेस्टर है वो अपना रिटर्न देखता है, अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर देखता है, और जो वो रिटर्न देखता है डिपेंड्स ऑन योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट। हमारे कंट्री में जो लोन रेट्स हैं वो बहुत हाई हैं, बट
बैंकिंग सिस्टम्स बहुत रोबस्ट है, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्ले नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो लोन सोच समझ के उतना ही लेना चाहिए जितना पे बैक हो सके, गिवन दिस बिजनेस इज ऑल्सो सिक्लिकल बिजनेस। जो आपने अभी पॉइंट उठाया कि अभी इन्वेस्टर सोच रहा है कि अच्छा कोविड के बाद टाइम आया, दिस इज दैट साइकिल, everything that goes up comes down. Right. We have seen the worst and now we are seeing the best. Will the best remain the best? Answer is no. It will certainly stabilize. The good thing for the investor and for anybody who's associated in this sector is that the economy is overall playing very well. The infrastructure story in India has been like never before. Political stability. Political stability, you're right, and other forms of markets which are also fueling money into this. Right. You know, whether you see stock market returns, what they have given to the investors in the last 3 years, it's been volatile now. Consumption is very high. Consumption is high, तो fundamental strong है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो रेट ग्रोथ जो हमने देखी वो नीचे नहीं आने वाली, वो स्टेबिलिटी पे आ जाएगी, और वो एक इन्वेस्टर की जो कैपिटल वो लगाने की सोच रहा है उसको कहीं ना कहीं प्रिजर्व करेगी। तो इसलिए इट्स अ गुड टाइम, इट स्टिल इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। लैंड प्राइसेस हैव गॉन अप, सीमेंट प्राइसेस हैव गॉन अप, बट सो हैव द एवरेज रूम रेट्स। राइट। सो जो जीओपी मार्जिन्स हैं आपके वो बढ़ गए हैं पहले से ज्यादा, तो देयरफॉर वो यील्ड जो आपने आरओआई की बात करी, वो आरओआई जो आज आ रही है वो आज से पहले कभी थी ही नहीं। Despite of increase in land prices, despite of increase in construction prices, because you have demand. You have domestic travelers, you have foreign travelers who are coming back. Look at office leasing markets, look at consumption stories in shopping malls, look at the airlift. So all those things are going to continue to provide that advantage to this sector. Right. Even people are spending good amount of money in leisure activities nowadays. Absolutely. So earlier, almost before 10-15 years, weekend getaway word ही नहीं होता था. जी. So now it is very common. जी. You go in metro cities, you'll find and a number of families are going for 2-3 days vacation. So ये तो है sir, India की growth story. I understand it very well that every single sector is getting benefit out of it. So अभी भी मेरा एक क्वेश्चन जरूर रह गया, बिकॉज आई एम अ कोर रियल एस्टेट गाय, सो एवरी टाइम इट्स लाइक दिस इज द मनी वी आर पुटिंग इन, व्हाट वी विल गेट द आउटपुट, ब्रेक इवन कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? श्योर। सो देखिए, होटल बनाने में रफली 3 से 4 साल लगते हैं ऑन एन एवरेज। होटल बिजनेस को स्टेबलाइज होने में लगभग 3 साल लगते हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ ऑपरेशंस। तो आप समझ लीजिए, अगर आप आज ये बनाना सोचते हैं, डिज़ाइन डेवलपमेंट करते करते आप 4 साल में मार्केट में एंटर करेंगे, उसके बाद 3 साल उसके आगे आप उसको स्टेबलाइज होने में देखेंगे। राइट। अगर मार्केट सपोर्टिव है तो। राइट। तो 7 साल हो गए, ठीक है। अब उसके बाद आपके जो हैं जो आपके होम जो लोन्स ले रखे हैं आपने, उनको वापसी करना है। ओवरऑल वो बिजनेस ही वापस करता है, यू डोंट हैव टू पे। सो ultimately जो return है, it's a long gestation game, unlike other forms of real estate. So you would call it anywhere between 7 to 8 years is what your, call it the payback time. But again, it depends on what do you mean by that payback. There are hotel companies जिनका ये बिजनेस है, वो उसको payback नहीं मानती। वो देखती हैं कि हमारा होटल कैश पॉजिटिव कब हो रहा है, राइट, हम अपना लोन सर्विस कर पा रहे हैं कि नहीं, बिकॉज दैट ऑल्सो गिव्स यू डेप्रिसिएशन एंड बेनिफिट ऑन टैक्स। राइट। तो वो डिपेंड करता है आप किस साइड पे हैं इस वैल्यू चेन के। बट टू लेट्स से टू अ लेमैन, टिपिकल इन्वेस्टर, अगर आज वो ए चीज़ खरीद रहा है वर्सेस बी चीज़ खरीद रहा है, अगर उसको रिटर्न्स जो देखने हैं वो होटल के अंदर 7 से 8 साल के अंदर देखने चाहिए। IRRs जो हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की, वो थ्रेशोल्ड लगभग 14% है, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ डेट बहुत हाई होती है और टाइम जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है। तो आप मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि 14-15% कंपनीज देखती हैं। अगर उनको वो IRR नहीं मिल रहा तो वो इस बिजनेस में आइडियली नहीं आती। राइट। So hospitality chain, whenever we have this
word in our mind. It is all about services. So there are end number of opportunities when it comes to hospitality chain, owning a hotel, and there are many multiple ventures along with that hotel. So first of all, I really want to ask, what more opportunities are there apart from hotel? So Michelin restaurants are there, bar lounges are there, and usually what is the return which these assets combined together with hotel give in a typical you can say property? आई थिंक इसको आंसर करने से मैं एक स्टेप पहले पीछे लूँगा। लैंड प्राइसेस के चलते किसी भी अर्बन सेंटर में, एक इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर में स्टैंड लोन होटल बनाना थोड़ा अनफीजिबल सा होता जा रहा है, राइट? तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि मोर एंड मोर मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट का चलन हो रहा है आजकल। उसका रीजन है बिकॉज आप अपने रिस्क को हेज कर रहे हैं, राइट, और अपने आप कैश फ्लो को बेटर मैनेज कर रहे हैं एज अ डेवलपर। एज अ कस्टमर आपको उस एक ही प्रिसिंक्ट में, एज यू सेड, कॉम्प्लीमेंट्री चीजें मिल रही हैं, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। बिकॉज आज की डेट में आपको कन्वीनियंस चाहिए। आप किसी जगह जाके रुके, आपको वहाँ फूड एंड बेवरेज की ऑप्शंस भी मिल गई, शॉपिंग की ऑप्शंस भी मिल गई, आपका ऑफिस भी करीब है, तो आप वहाँ से अपने ऑफिस में काम करके रात को वापस आ गए। तो ये मिक्स्ड यूजेस जो हैं ये वर्ल्ड ओवर चल रही हैं फॉर सच रीजंस। इसकी वजह से आपके रिटर्न्स भी बेटर हो जाते हैं एज अ डेवलपर। रिस्क भी कम होता है, रिटर्न्स भी बेटर, हेज कर लिया आपने उसके साथ शायद रेजिडेंशियल बनाया, वो बेच दिया है, रेजिडेंशियल को हेलो इफेक्ट मिल गया बिकॉज ऑफ द होटल, फुटफॉल आ गया, ऑर्गेनिक फुटफॉल आ रिटेल गया, बनाया, रिटेल की वजह से फुटफॉल आ गया, क्योंकि होटल गेस्ट वहाँ के रह रहे हैं तो वो जाके खाना पीना खा रहे हैं एटसेट्रा। तो वन एसेट क्लास फीड्स इनटू अनदर एसेट क्लास। सो जो प्राइवेट इक्विटी कंपनीज हैं, जितनी जो फंड्स हैं, उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है लगभग 16 से 18%। मांगते तो वो 24% है, मिलता नहीं है, या ओवर टाइम मिलता है। तो आई वुड से समवेयर अराउंड 18% इज अ गुड रिटर्न फॉर प्राइवेट इक्विटी। फॉर ब्लेंडेड इक्विटी आई वुड से डेट एंड इक्विटी मिला के, वही मैंने जैसे 14% आपसे कहा अभी, कि वो एक इज अ डिसेंट रिटर्न, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ डेट ही जो है करीबन 9% आ जाती है। तो हमारी वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको हम बोलते हैं वही 12-12.5% आ जाती है। तो उसके तो आपको ऊपर ही खेलना है, वरना आप कहोगे जी मैं बैंक में पैसा डाल दूं, मुझे क्यों लगाना, राइट? बट होटल्स एक चीज़ बहुत अच्छी करते हैं जो बाकी एसेट क्लासेस नहीं करती, वो है कैपिटल एप्रिसिएशन। देखिए, आपने ऑफिसेज बनाए, आपने लीज कर दी, स्ट्रेट लाइन ऑफिस लीज है, 3 साल बाद आपका लॉक इन खत्म हुआ, लेकिन आपकी एस्केलेशन आ गई, 15% से एस्केलेशन हुई, आप आगे बढ़े, एटसेट्रा एटसेट्रा, 9 साल पे लीज खत्म हो गई। बैंक जब उसको आप LRD पे जाते हैं तो बैंक आपको वो 9 साल की इनकम देखता है, एश्योर्ड है, ठीक है, बट वो स्ट्रेट लाइन है। रेजिडेंशियल में आपने जमीन ली, प्लान बनाए, बहुत अच्छा सा ब्रोशर बनाया, डिपेंडिंग ऑन विच साइड ऑफ द मार्केट यू आर। अगर मार्केट बहुत अच्छी है तो ब्रोशर पे बिक गया, मार्केट थोड़ी सी कम अच्छी है तो सैंपल फ्लैट पे बिक गया, मार्केट बुरी है तो सैंपल फ्लैट भी बना दिया, फिर डेवलपर की प्राइवेट इक्विटी पे बिक गया कि यार ब्रांड बड़ा अच्छा है, देखो जाएगा कहीं नहीं, ले लो। आजकल EOI पे बिक जाता है, आजकल EOI पे बिक जाता है, आपको ज्यादा पता है। होटल बिकता नहीं है उस हिसाब से, लेकिन वो आपको ना कैपिटल एप्रिसिएशन दे जाता है, बिकॉज आपने सामान तो बेचा ही नहीं ना, आप बाहर तो हुए ही नहीं, आप अंदर हैं। लैंड कॉस्ट बढ़ रही है, लैंड कॉस्ट प्रॉपर्टी बढ़ गई एप्रिशिएट हो और रही है, एड्रेस बढ़ गया ना। आप देखिए, अनलाइक वेयर हाउसिंग या इंडस्ट्रियल या लॉजिस्टिक्स, हम लोग हमेशा ऑन द बेस्ट लोकेशन ऑफ द रोड होते हैं, राइट। तो आप उसकी वैल्यूएशन का कोई हिसाब ही नहीं है। तो वो वैल्यूएशन जो है आपकी, आप बेसिकली अपनी वेल्थ जनरेशन करते हो फॉर योर फैमिली, फॉर योर बिजनेस एंड फॉर द फ्यूचर जनरेशंस टू कम, राइट। वो एक होटल एसेट क्लास जो करके दे जाता है। और बिकॉज ये सिक्लिकल है, तो जब ठीक है, जब डाउन होता है तो प्रॉपर्टी मार्केट्स भी डाउन होती हैं, रेजिडेंशियल भी डाउन होता है, तो ये भी डाउन है, मान लिया। पर जब ये ऊपर उठता है ना, तो कमर्शियल लीज तो वही 15% पे बढ़ रही है, ये 30% पे बढ़ जाएगा, हो सकता है 50% बढ़ जाए। वो जो आपको वैल्यू 3 साल में दे जाएगा, डेट वेट खत्म, खलास, एंड यू आर फ्री। इवन द बेस्ट पार्ट अबाउट द रेंटल इनकम इज आज की वैल्यू पे मिलता है। तो आपने अगर 400 करोड़ रुपए का बनाया है और वो ओवर द पीरियड ऑफ 6 से 10 साल 1000 करोड़ का हो गया,
तो आपका रेंटल भी 1000 करोड़ पे आना है, बिल्कुल तो आपकी वो ROI बिल्कुल चेंज हो जाती है. बिल्कुल चेंज हो जाता है, Right, right. एब्सोल्युटली. So, hospitality chains में we have these metro cities. Even in real estate also, we typically talk about 7 metro cities. So, और कौन सी opportunities हैं ये metro cities को छोड़कर? देखिए, होटल कैपिटल मार्केट्स में जो हम डेटा भी देखें या जो बिजनेस का प्रॉस्पेरिटी देखें, वो टॉप 11 सिटीज़ हैं इंडिया में. Okay. 7 सिटीज़ जो आपने बोली, हम्म. सबके जुबान पे वही होती है: दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, पुणे, हैदराबाद. हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, कलकत्ता. Right. अब हॉस्पिटैलिटी मार्केट्स में अब लेजर मार्केट्स भी ऐड कर लो. गोवा, जयपुर, Right. उदयपुर और हिमालयास. उसके अंदर आप थोड़ा बहुत हिमाचल डाल दीजिए, हिमाचल में आप चंडीगढ़ भी डाल दीजिए, बिकॉज दैट्स अ ट्रांजिट लोकेशन. और इनका एक क्लस्टर है, तो करीबन 10 या 11 मार्केट्स हैं टोटल. 7 बिजनेस सिटीज प्लस 3 और 4 पर्टिनेंट लेजर टाउन्स. अब उसको थोड़ा सा और एक्सपेंशन मिल रहा है टीयर 2 टाउन से, जैसे जो स्टेट कैपिटल्स हैं. फॉर एग्जांपल लखनऊ है, चंडीगढ़ की हमने बात करी, बट अदर ट्रेडिंग सेंटर्स है जैसे लुधियाना, राइट, भोपाल हो गया, अहमदाबाद हो गया, इंदौर, पटना हो गया, राइट. ये जो मार्केट्स हैं ये भी प्रॉस्पर कर रही हैं, बिकॉज ट्रेडिंग टाउन्स भी हैं इनके आसपास, तो लोग तो जा रहे हैं. राइट. एंड कैपिटल इन मार्केट्स ने भी बहुत बनाई है पिछले 10 साल में. अगर हमारी इकोनॉमी ग्रोथ अर्बन सेंटर्स में और मेजर सिटीज में हुई है तो नीचे भी हुई है. तो उस वजह से यहाँ पे भी ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत है. और तीसरा है पिलग्रिमेज टाउन्स, जिसको हम लेजर का ही पार्ट बोलते हैं, बट बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड, आई मीन फुल मार्क्स टू द गवर्नमेंट ऑन दैट, बोथ द सेंट्रल लेवल, लार्जली एट द सेंट्रल लेवल, बट ऑल्सो एट द स्टेट लेवल, दैट वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इस कदर हुई है जो पहले कभी नहीं हुई थी. अब वो शहर करीब हो गए हैं, राइट, एंड मोर एक्सेसिबल हो गए हैं. राइट. जब वो हो जाता है ना, तो आप पहले कहते थे यार अब क्या जाएगा, 10 घंटे लग जाएंगे, पहले 2 होता था दिन लग 4 जाएगा, धाम की यात्रा करने का मतलब आप सीधा ऊपर ही आप जाओगे. ऊपर ही जाओगे. अब आपको लगता है यार 4 धाम करे, अच्छा यार ये तो एक बार हो गए, अब एक बार और करते अभी हैं, और, हाँ, और भी बिकॉज बचे. अब जा सकते हो बार बार, राइट. राइट. तो एक वो बड़ा बेनिफिट हो गया, राइट. और उस वजह से चीजें करीब हो गई. तो पिलग्रिमेज टाउन्स में बहुत इम्पेटस है. राइट. और पहले क्या होता था, देखिए जी, हम जाते थे तो धर्मशाला मिलती थी रहने में, ठीक है, तो आप कहते थे यार जाना तो है, मत्था भी टेकना है, लेकिन यार वापस अपने घर आ जाओ. अब आप कहते हो नहीं यार, जा तो रहे हैं, जैसे आपने स्टेकेशन की बात कही, लोग आप इर्द गिर्द ही जाते हैं, तो कहते हैं यार अब जा ही रहे हैं, जब मत्था टेकना तो चलो एक दिन और रुक जाते हैं, थोड़ी कचौड़ी खा लेंगे, राइट, थोड़ा और एंजॉय कर लेंगे, थोड़ी फोटोग्राफी कर लेंगे. इस वजह से जो ये शहर है, अमृतसर हो गया, तिरुपति बालाजी हो गए, अपना बनारस हो गया, ये शहर फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है. तो यहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, लेजर की जो ग्रोथ है वो फिनोमिनल है. और ये मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ जो है ये बढ़ेगी ही, ये कम नहीं होगी. एंड आप देखिए कनेक्टिविटी, फ्लाइट्स कितनी जा रही हैं, कितनी सुविधा हो गई है आपको. तो पूरा इकोसिस्टम जो है ट्रैवल का, उसको बेनिफिट होगा इस सब चीज़ों का. सो कुंभ हमारे सामने ही है. सो almost more than 1 crore people on daily basis they are going there. 56 crore people have already visited. So does our hotel infrastructure is built in that way कि वो आज प्रयागराज में अगर ऐसा कुछ इवेंट हुआ है तो इतने बड़े लोगों को रखने के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास? जी नहीं है. और आई मीन माय व्यू इज दैट ये जो है ना, ये इवेंट्स अपने आप में बहुत बड़े इवेंट्स हैं, आप इनको एनविजेज नहीं कर सकते. राइट. अब जैसे G20 हुआ, व्हाट एन इवेंट, राइट, व्हाट आई मीन फुल मार्क्स टू द गवर्नमेंट on what level they created and they did it. Right. And hotel industry and travel industry genuinely benefited a lot out of that. क्यों? क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे थे साथ साथ. अब आप सोचिए, जैसे कुंभ मेला हो रहा है, वैसे G20 होता विदाउट होटल्स, विदाउट एयरपोर्ट्स. हो सकता था? नहीं हो सकता था. नहीं हो सकता था. वो इसलिए कॉमनवेल्थ नहीं हो सकता. कॉमनवेल्थ नहीं हो सकता. क्रिकेट मैच नहीं हो सकता. क्रिकेट मैच सबसे बड़ी बात नहीं हो सकता. आप आज देखिए, अहमदाबाद इज अ फिनोमिनल स्टोरी. फिनोमिनल स्टोरी. And it's not only the hotels which are gaining getting the advantage of it. The whole travel and tourism ecosystem. Look at taxi drivers, that business. Look at travel agents. उसको छोड़िए,
आप किसी भी शहर में जाते हैं क्रिकेट मैच देखने, उसके आसपास जो वेंडर्स हैं, जो खाने का स्टॉल लगा के बैठे हैं, जो आपको गोलगप्पे दे रहे हैं, उसको भी तो बेनिफिट हो रहा है. Right. So it is touching everybody in the value chain. So that's where, and also travel and tourism sector is a very underrated sector when it comes to, you know, the finance and the economy story, because what happens is हमें लगता है तो गिवन है तो होना ही है, बट अल्टीमेटली आप देखिए लोग कितने पीछे उसके काम कर रहे हैं. इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स इन द कंट्री. और इसकी रीच देखिए, आप कहीं स्टील प्लांट लगाते हैं, आपने वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी, कहीं माइन है वहाँ जनरेट कर दी, कोई ट्रेडिंग टाउन बना दिया वहाँ जनरेट हो गई. लेकिन यहाँ तो शायद सड़क भी नहीं है, लेकिन किसी ने अच्छा रिजॉर्ट बना दिया. अब उसके गांव के लोगों को तो काम मिल गया ना, नहीं तो बेचारे स्टील प्लांट काम ढूंढने जाते. हमने काम, ये इंडस्ट्री काम आपके डोर स्टेप तक ले आती है. It is all about developing whole ecosystem. तो ये आई थिंक अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस बिजनेस का, और गवर्नमेंट इस बात को समझती है काफी हद तक. दैट्स व्हाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड पुट दिस एज वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स ऑफ ग्रोथ इन एवरीवेयर. You know, whenever he speaks, tourism is that one big T in his agenda items. So government का बहुत बड़ा रोल है, तो बहुत बड़ा रोल है as a facilitator. And the beauty is that they create that infrastructure so that the ecosystem can prosper. अगर सड़क बनेगी नहीं तो लोग जाएंगे नहीं. देखिए आगरा कितनी क्लासिक स्टोरी है. पहले आगरा में ताजमहल था, सब आते थे ताजमहल देखते थे, वहां रहने की कुछ ज्यादा अच्छी जगहें नहीं थी, तो लोग वापस दिल्ली आते थे बिकॉज होटल यहाँ थे, या जयपुर जाते थे, रात रुकते थे, कमर तोड़वा के आते थे वापस, स्पा लेते थे और फिर चले जाते थे. फिर एक दिन मिस्टर ओबरॉय ने ये बहुत बड़ा फर्म डिसीजन लिया कि ओबरॉय अमर विलास बना आगरा के ताजमहल के पास. ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, ब्यूटीफुल, इट्स लाइक द टॉप एंड ऑफ द लग्जरी इन द वर्ल्ड. नाउ एवरीबडी यूज्ड टू क्वेश्चन, अरे आगरा तो कोई रहता ही नहीं है, तो आप क्यों इतना बड़ा होटल बना रहे हो, इतना महंगा होटल बना रहे हो. सी द थिंग इज, कोई रहता नहीं है वो इसलिए नहीं क्योंकि वो रहना नहीं चाहता, वो रहता नहीं है बिकॉज कुछ है ही नहीं. जब आपने एवेन्यू दे दिया तो वही लोगों ने अपना जो लेंथ ऑफ स्टे है, जिसको हम एक बहुत बड़ा मेट्रिक मानते हैं परफॉर्मेंस का होटल बिजनेस में, वो लेंथ ऑफ स्टे इंक्रीज हो गई. अब वो लोग एक रात रुकने गए, उनको अच्छा लगा, वो 2 रात रुके, राइट. इकोनॉमी बढ़ी, आगरा में कितने और होटल्स आ गए. अब हर आदमी तो नहीं अफोर्ड कर सकता दी ओबरॉय अमर विलास, लेकिन उसके इर्द गिर्द होटल बने, हॉलिडे इन आया, लेमन ट्री बने, जेपी आया, अलग अलग सेगमेंट्स में आए, सो दैट एवरीबडी कैन गो, राइट. तो मार्केट डेवलप हो गई ना. रोड तो बाद में आई, रोड बहुत बाद में आई. अब अमेजिंग चीज क्या हो रही है, अब रोड पहले आ रही है, राइट. हाईवेज पहले बन रहे. I give a lot of credit to Shri Nitin Gadkari ji. Right. Seriously. Lot of credit. I mean, he's a visionary. And उन्होंने रोड्स दे दी आपको ताकि आप उस पेस और उस स्पीड और उस कन्वीनियंस पे जा पाए जो आप पहले सोचते थे नहीं. तो जब रोड आ गई तो बिजनेस बनने शुरू हो गए, एयरपोर्ट्स बने, ईज ऑफ ट्रैवल हो गया. पहले लोग सोचते नहीं थे, आज people go for more than 15 days vacation. Yeah. So earlier it was like कि कहीं जाना तो 1 दिन 2 दिन रुक कर वापस आना घर, और वो छुट्टी 1 साल में 1 बार होती है. राइट. अब वो छुट्टी साल में 4 बार डिवाइड हो गई, स्कूल की छुट्टियों के हिसाब से, और डिपेंड आपकी वॉलेट शेयर के हिसाब से आप कितना खर्च सकते हैं, क्या कैपेसिटी है. पर आजकल हर आदमी एक्सपोजर चाहता है और वो देखना भी चाह रहा है. इस बात का बहुत श्रेय इंस्टाग्राम को भी जाता है क्योंकि फोमो हो रहा है, राइट. भाई आप चले गए, मैं नहीं जा पाया, आपने तस्वीर डाल दी, मैंने नहीं डाली. कुंभ एग्जांपल, ये कुंभ में इतने सारे लोगों के जाने पीछे सबसे बड़ा कारण ही इंस्टाग्राम. कोई सारे पाप तो थोड़ी गए, राइट. एक्सपीरियंस के लिए गए. स्टार्टअप्स चल गए जी, स्टार्टअप्स, और they charge 2000 rupees to dip in your photo. Look at that. They have made crores. Yeah, that's right. That's right. Yeah, social media is a very big thing. Yeah. So I really want to understand 2-3 cities where you think that still there is opportunity to build hotels. Well, there are many, not 2-3. I would say in the existing list that we spoke, the top 10 or 11 cities, वो तो fundamentally strong है ही हैं. There is, I think, a lot of potential that Bangalore still has. Okay. Because Bangalore micro market, अब कहीं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, अब थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की. कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रैफिक सिचुएशन है हमारे शहरों की,
रोड्स की, इंटरनल सिटीज के अंदर बात करें, वो ना आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने नहीं देती, या जाते हो तो फंस के वापस आते हो, तो आप बोलते हो रात रुकी जाए। राइट। तो बैंगलोर अपने आप में अपने क्रॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ना माइक्रो मार्केट्स में डिवाइड हो गया है। एक छोटा सा खूबसूरत सा शहर था, बहुत बड़ा बन गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में तो हालत खराब हो जाती है। तो आप कहते हो जी देखो, अगर मेरा काम वाइट फील्ड में है तो मैं वाइट फील्ड में रहूंगा, मेरा काम एमजी रोड पे है तो मैं सेंट्रल बैंगलोर में रहूंगा, मेरा काम एयरपोर्ट के पास है तो नॉर्थ बैंगलोर में रहूंगा। अपने आप में माइक्रो मार्केट्स बन गई। वो माइक्रो मार्केट्स बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग माइक्रो मार्केट्स है, बिकॉज बैंगलोर की ऑफिस लीजिंग मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। राइट। देखिए कितनी कॉर्पोरेट कंपनीज अभी भी वहां जा रही टू एंड फ्रो बहुत है, टू लोग एंड फ्रो बहुत बहुत आते है, तो उस वजह से वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है। हम्म। हैदराबाद इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट, बिकॉज ग्रोथ है, नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, होटल्स की नीड है अभी भी। बिल्कुल है, 100% है। और बॉम्बे बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुंबई इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट। अब जो रिलायंस जियो वर्ल्ड ने कर दिया और जियो सेंटर ने कन्वेंशन सेंटर बना के कर दिया, उसने सिर्फ अपने लिए नहीं काम कर रहा है, उसने पूरे शहर को इतनी कैपेसिटी दे दी कि अब लोग 1+1 के लिए आते हैं। आप एक काम के लिए जा रहे हो लेकिन एक और करके आते हो, तो दैट मीन्स कितनी डिमांड और बढ़ गई। तो मुंबई हैज ग्रेट पोटेंशियल टू हैव मोर होटल्स। सिमिलरली गोवा, I mean we can talk more about Goa, but Goa still has, because it's a premier leisure destination, hell or high water you will go to Goa, and maybe once, maybe twice in a year, and every time you need a new experience, and every time your wallet size and wallet share will be different, because हो सकता है आप कभी दोस्तों के साथ जा रहे हो सकता है कभी अकेले जा रहे हो सकता है कभी ऑफिस नीड के साथ जा रहे हो, तो आपके बजट्स बड़े डिफरेंट होते हैं। तो उसके लिए तो आई थिंक, और इसके अलावा Tier 2 टाउन्स अपने आप में, जो ट्रेडिंग सेंटर्स की मैंने बात करी, उनमें बहुत दम है। लेजर टाउन्स जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल हिमाचल में आप कंट्री लोकेशंस देख लीजिए, लोग लेजर के लिए जाना चाह रहे हैं, लोग एक्सपीरियंस के लिए जाना चाह रहे हैं, और वहाँ जाना चाह रहे हैं। वी कॉल इट अ रोड लेस ट्रैवल्ड। पीपल वांट टू explore that road which is less traveled, so there is growth. So there are many brands when we talk about hotels. So I'll come on a point. There are Indian brands, there are international brands. So every single brand has their own forte. So आज ये होटल इंडस्ट्री का कॉन्ट्रास्ट देखें हम, एक तरफ मैरियट है, दूसरी तरफ हमारे ताज है, ओबरॉयज है, देन यू हैव हिल्टन आल्सो, then you have some different properties, resort style properties. So if you can put some light on all these major brands and tell how they are different from each other. I think brand landscape जो है हर कंपनी का, उसमें काफ़ी वैरायटी है, और वो कस्टमर की नीड और उसकी एस्पिरेशन को देखते हुए। जैसे अगर आप 3 स्टार कस्टमर हैं, तो हर जो भी आपने कंपनीज का नाम लिया, उन सब के पास अपने अपने पोर्टफोलियो में उस नीड के लिए ब्रांड है। राइट। अगर आप लग्जरी एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल मैरियट से शुरू करें तो उनके पास फेयरफील्ड बाय मैरियट है। IHG में जाएं तो उनके पास हॉलिडे इन एक्सप्रेस है। हिल्टन में जाएं तो उनके पास हिल्टन गार्डन इन है, राइट। ताज में जाएं तो उनके पास जिंजर है, सरोवर है, बिल्कुल है, लेमन ट्री है। अब लग्जरी में चले जाएं आप ऊपर, या चलिए लग्जरी से पहले बीच में 4 स्टार 5 स्टार सेगमेंट में जाएं, तो मैरियट से शुरू करें तो उनके पास मैरियट है, JW मैरियट है। हिल्टन के पास हिल्टन है, कॉनरेड है। हायट के पास हायट रीजेंसी है, ग्रैंड हायट है। ओबरॉय के पास ट्राइडेंट है। ताज के पास गेटवे है, विवांता है। सिमिलरली IHG के पास क्राउन प्लाजा है, हॉलिडे इन है। सो हर कंपनी ने अपने अपने मार्केट को देखते हुए और गेस्ट को देखते हुए अपना अपना ब्रांड आर्किटेक्चर और अपना अपना प्रोडक्ट डिफाइन किया हुआ है। इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं एक तरफ जिनका हमने नाम लिया, और इंडियन ब्रांड्स हैं। ये इंडियन ब्रांड्स आप बोलो, ताज, ओबरॉय, ये इंडियन ग्रोन हैं, ललित, पर ये इंटरनेशनल हो चुके हैं। सो आई ऑफन कॉल देम इंडियन बॉर्न इंटरनेशनल ब्रांड्स। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये इंडियन है और वो
फॉरेन है, ये सब देखिए ताज कहाँ कहाँ जा रहा है. Oberoi has been in overseas market for last 30 years. Right. Right, so therefore they are well established brands. लेकिन अब इनकी penetration overseas market में आने वाले टाइम में आप ज्यादा देखेंगे. So which is the most successful brand in terms of occupancy and even turnover in India? Well, ये कहना मुश्किल है, because देखिए एसेट बाय एसेट, मार्केट बाय मार्केट डिफर करता है. सबसे बड़ी मार्केट किसकी है? सबसे ज्यादा शेयर आई थिंक इस वक्त मैरियट के पास है और ताज के पास है, बाय वे ऑफ number of hotels that they operate in this country. So their penetration, right from a luxury 5-star to budget 3-star, is amazing. Both of them. Similarly, Radisson. You will see a Radisson hotel everywhere, and they claim that if you start from Kashmir, you go to Kanyakumari, you will actually have a Radisson hotel every 4 hours. Wherever road you are in. That's why they have a wonderful recall value. देखिए पेनिट्रेशन कितनी है मार्केट में. हम टीयर 2 टीयर 3 की बात करते हैं, वो तो कब से कर रहे हैं काम. राइट, सो देयरफॉर फिनोमिनल ग्रोथ स्टोरी देयर. एंड सिमिलरली अगर आप लग्जरी में बात करें तो ओबरॉय है, जिन्होंने बल्कि लग्जरी सिखाई है पूरी दुनिया को, राइट, और सर्विसेज सिखाई हैं पूरी दुनिया को. और मैरियट ने भी अपने लग्जरी पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है. All the JW Marriotts are phenomenally successful in this country. They are large money-making hotels for the owners, for the Marriott Group, and fantastic success stories. Taj is extremely successful, and has a lot of penetration, depth, culture. So I mean, these stories are frankly legendary stories. So nowadays, we keep on hearing one word, that is branded agency. So it is some new for Delhi NCR. So there are very few properties in India, but for Dubai, for Singapore, for Hong Kong, for Bangkok, it is way too normal because there are n number of options. So I really want to understand about branded agency. India में क्या scope है? कितने अभी हैं ऐसी branded agency? And what exactly is the future? इसके लिए ना एक सेपरेट एपिसोड करना पड़ेगा, बिकॉज ये वो भी कर लेंगे. हाँ, ये सब्जेक्ट सबके लिए बड़ा ही फैसिनेटिंग है. राइट, एवरी डेवलपर इज टॉकिंग अबाउट दिस. डेवलपर भी, एंड यूजर भी, कोई भी इस रियल्म से जुड़ा हुआ है ना, वो सब में मतलब कभी कभी होता है कि लोग रोक के रास्ते में पूछते हैं, भैया थोड़ी सी बता जाओ कि क्या है. तो हुआ ये कि देखिए, जब वाइटलैंड ने वेस्टर्न साइन करा, हम इन्वॉल्व थे उसमें, और हमने it was path breaking in many ways. And first time in this country you have a first home which is branded. When I say first home, it's not your holiday home, it's not second home. आप वहाँ हमेशा के लिए रहने के लिए खरीद रहे हैं. So it's your first home, branded residences without the hotel. ऐसा नहीं हुआ इंडिया में. दुबई में होता आया है, अदर मैच्योर मार्केट्स में होता आया है. मैरियट ये काम पिछले शायद 50 सालों से कर रहा है. देयर आर सेपरेट ऑपरेटिंग बिजनेस इन रेजिडेंसेस. They are the biggest one. They are the biggest and separate. So they have a separate OpCo, ऑपरेटिंग कंपनी अलग है जो रेजिडेंसेस रन करती है. तो ये मतलब एक तरह से आप देखिए, इतना कैपेसिटी के साथ गुड़गांव के अंदर वाइटलैंड जो बनाने जा रहा है, which is about 1,800 apartments, I'm told. When we started talking about 1,400, but naturally they've got more land and they're doing it. It's a very it's a first time. It's a pioneering concept, and there are not too many branded residences signed in this country yet. There's How a many? lot How of many chatter. are there? Well, they're not even double digit. Oh. If I can count on my fingertips, probably 7 or 8. Okay. Ritz-Carlton Mumbai, Westin with Whiteland here in Gurgaon. Then you have a couple of prospects which are going on in Hyderabad. I would say one probably in Bangalore, one in Kerala. Taj is also coming. Taj is signed up in Chennai. And that's about it.
बाकी प्रोस्पेक्ट्स हैं, Hmm. अपॉर्चुनिटीज हैं, डेवलपर्स पूछ रहे हैं कैसे करें। तो So how you see these properties different from any good ultra luxury property? देखिए, कॉफी है, Yes. ये कॉफी के ऊपर वो फोम है जो हर किसी के बस की बात नहीं है वैसे फोम उस कॉन्फ़िगरेशन में उस टेस्ट में देना। Okay. तो मैं अगर एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, उसको क्या मिलता है इसमें? उसको मिलता है एक होटल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो वो हमेशा से चाहता है। हम जब 5 स्टार होटल में रह के आते हैं, हम वहाँ पे चीज़ें देखते हैं, अरोमा देखते हैं, सर्विस देखते हैं, चीज़ें देखते हैं लगी हुई, हम कहते हैं यार हमारे घर पे क्यों नहीं है? और ऐसा नहीं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी यू आर इन। और आप होटल भी उसी तरह से चूज करते हो। अगर आपका घर जिस तरह से है ना, जो आपका लेवल है, उससे थोड़ा सा ऊपर का आप होटल का रूम डिसाइड करते हो जब भी रहते हो, और वही आप पैसे देते हो प्रीमियम। और जब आप वापस घर आते हो कहते हैं यार हम ऐसा क्यों नहीं है। जब मैं एंटर करता हूँ अपने बेसमेंट में या अपनी लिफ्ट लॉबी में, तो मुझे तो वो खुशबू नहीं आती, वो फिनाइल का पोछा लग रहा होता है। क्यों? वो चीजें हैं द फिनेस ऑफ योर लाइफ, राइट। वो टच पॉइंट्स, और ऐसे बहुत सारे टच पॉइंट्स हैं। वो देता है आपको एक होटल ब्रांडेड एक्सपीरियंस पार्टनर, और वो आपके लाइफस्टाइल को एनहांस करता है। ऐसा नहीं है कि आपका कमरा बड़ा हो जाएगा या आपकी अलमारी बड़ी हो जाएगी, वो तो ऑब्वियसली आपका नक्शा, उतना ही स्क्वायर फीट मिलना है, FSI कॉस्ट, वो सब चीजें वो डिफाइन करेंगे। लोकेशन भी वही रहेगी, सारी चीजें सब कुछ वो रहेगा, लेकिन एक ओवरऑल एक ऐसी लेयर ऐड हो जाएगी फिनेस की, आपका एक्सपीरियंस की, कि आप उसके बाद you start appreciating good things in life. So that is what branded residences promises. And otherwise देखिए, and it's an evolution. ब्रांडेड रेजिडेंसेस इंडिया में आज से 10-15 साल पहले भी बहुत चर्चा में आए थे, पर तब क्या होता था, होटल हर बिल्डर कहता था मैं बनाऊंगा जी बेस्ट 5 स्टार होटल, और मैं साथ दूंगा ब्रांडेड रेजिडेंसेस फॉर सेल, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, वी कॉल इट स्टूडियो अपार्टमेंट्स, कुछ भी बोलो आप। फिर होता क्या था, हर बिल्डर वही सोचता था, मैं भी वही सोच रहा हूँ, आप भी वही सोच रहे हो, मेरे पास भी 5 एकड़ जमीन, आपके पास भी 5 एकड़ जमीन, हमारा आर्किटेक्ट जितनी मर्जी जद्दोजहद कर ले, क्रिएटिविटी कितनी कर लेगा, क्योंकि FSI 4 की, मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, सबने वही काम किया। तो फिर बहुत फैंसी ब्रोशर बनाए और ब्रोशर पे माल बेच दिया। उसमें बिका क्या? रेजिडेंशियल, ब्रांडेड नहीं। ब्रांडेड बोला कि मैं इसको ब्रांड करूंगा, पर रेजिडेंशियल बेच दिया। ऑफिस बिल्डिंग बनाई, लीज कर दी। शॉपिंग मॉल बनाया, टुकड़ों में दुकान बाय दुकान बेच दिया। तो वो मॉल भी खंडर बन गए, या जैसे बनने चाहिए थे नहीं बने। प्लाजा, वो मॉल नहीं रहा, प्लाजा बन गया। टेलर भी खुला हुआ है, टेलर भी है, पान वाला भी खुला हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आ गया, पान वाला भी आ गया। और फिर आप नहीं आए, वो कस्टमर चला गया, क्योंकि वो एक्सपीरियंस चला गया। होटल तो बना ही नहीं, रह क्या गया? अधूरा प्रॉमिस। अब हम एज अ कस्टमर, एंड यूजर की बात करूं, अगर मैं आज बायर हूं, आप एज अ कंसल्टेंट, और मे बी आप लोग जो बिल्डर हैं, इन सब की एवोल्यूशन हो गई, इन सब का एक्सपोजर बढ़ गया, इन सबको एग्जैक्टली पता है कि मुझे चाहिए क्या। तो आप मांग भी वो रहे हो जो आपको प्रॉमिस आप उस हिसाब से अपना बनाओगे। और सबसे बड़ी बात, रेरा ने आपको वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन दे दिया काम करने का, जिसकी वजह से आप जो पैसा रेस कर रहे हो आप वहीं लगा रहे हो और उसको डिलीवर कर रहे हो। राइट। और जब वो डिलीवरी आ जाएगी तो अपने आप प्रॉपर्टी मार्केट ब्रांडेड रेजिडेंसेस की अपने आप मैच्योर हो जाएगी। तो ये आने वाले टाइम में हम इनको और प्रॉस्पर होता देखेंगे। लेकिन इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं कि हर आदमी क्यों नहीं कर पाता ब्रांडेड, और ब्रांडेड चाहिए क्यों। अगर आपकी अपनी ब्रांड इक्विटी अच्छी है एज अ डेवलपर और आपका माल बिक रहा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है ब्रांडेड रेजिडेंसेस की। अगर आपको अगर आपकी कॉफ़ी अच्छी है तो वैसे ही पियेंगे ना लोग, बिक जाएगी। और अगर आपकी कॉफ़ी अच्छी है लेकिन कस्टमर को नहीं पता अच्छी है, तो आप वो फोम ऐड करोगे और कहोगे ये देख, अब ये कॉफ़ी पी और चेक कर बाकी कॉफ़ी से, और जेन्युइनली वो कॉफ़ी अच्छी होगी। राइट।
Even in real estate now, if you talk about content building, every single development, we also say that part, resort living, ultra luxury, uber luxury. But yes, of course, branded residency is something new, and I believe it will give that kind of experience. वही वाली बात है, टेस्ट जब लग जाएगा तब लोगों को पता चलेगा कि इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग है. बिल्कुल। और ऐसा मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर शहर में, आप देखिए हर बड़े शहर में एक या दो ऐसे फ्रंटियर डेवलपर्स होते हैं जो ये एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं दे चुके हैं। डीएलएफ ने आपको वो एक्सपीरियंस दिया है गुड़गांव में, राइट. ओबरा रियल्टी ने बॉम्बे में वो आपको एक्सपीरियंस दिया है, राइट। प्रेस्टीज ने वो एक्सपीरियंस आपको बैंगलोर में दिया है। डेवलपिंग द ट्रॉफी प्रॉपर्टीज, वो आइकॉनिक प्रॉपर्टीज वो कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को रियली अपग्रेड भी करा है विद एवरी प्रोजेक्ट। यस. और अपस्किल भी करा है। देखिए हम एज जेएलएल वी मैनेज दीज हाई एंड कॉन्डोज एज वेल, राइट। वो ब्रांडेड है या अनब्रांडेड है या सेल्फ ब्रांडेड है। अब जेएलएल के लेवल पे भी देखा जाए तो आपका जब कस्टमर इवॉल्व होता है ना, तो मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी मुझे इवॉल्व होना पड़ता है। आप दूर नहीं रह सकते अपने कस्टमर से। अगर आपका कस्टमर है वो एक्सपीरियंस मांग रहा है और मेरे को उसकी समझ नहीं है तो मैं वो लर्न करके आऊंगा, अदरवाइज मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, राइट। तो जब कस्टमर इवॉल्व हुआ, डेवलपर इवॉल्व हुआ, तो हम जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स जेएलएल भी इवॉल्व हुआ ओवर टाइम, राइट। और वही एक्सपीरियंस मैटर करता है। अब इसी एक्सपीरियंस को आप और ऊपर लेके जा रहे हो ब्रांडेड रेजिडेंसेस के जरिए। लेकिन एक बात समझने की ये है, जो मैं सब बिल्डर्स को बोलता भी हूँ, व्हेन पीपल आस्क मी अबाउट ब्रांडेड रेजिडेंसेस, दैट यू सी, इफ साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रांडेड रेजिडेंसेस कैन नॉट बी अनलिमिटेड। मार्केट डिफाइन करेगी वो साइज। कहने का मतलब, जो व्हाइट लैंड अगर 1800 अपार्टमेंट दे रहा है जो स्केल में बहुत बड़े लग रहे हैं, मैरियट ने ये बाहर भी रन करे हैं, लेकिन वो 1800 ही है, वो 5000 नहीं दे सकता, बिकॉज मार्केट नहीं है। अगर गोवा में ब्रांडेड विलास की रिक्वायरमेंट 100 की है तो मैं 1000 नहीं बना सकता। और अगर हर बिल्डर बनाना बैठ जाएगा, मैं भी 100 बनाता हूँ, मैं भी बनाता हूँ, मैं भी बनाता हूँ, वो लिमिटेड एडिशन ही लिमिटेड एडिशन नहीं रहती ना, वो अनलिमिटेड हो जाती है, राइट। लग्जरी इज ऑलवेज लिमिटेड, लग्जरी इज ऑलवेज लिमिटेड, otherwise it will become common, otherwise become mass market। so वो हर किसी को समझना चाहिए। और पहले यही गलतियां करी थी, खासकर नोएडा ने बहुत गलतियां करी थी। उस वजह से इन्वेस्टर्स बर्न देयर फिंगर्स, ब्रांड्स बर्न देयर रेपुटेशन, you know, the whole property market had a little bit of a, you know, reality check। वो अब जो है, अब everybody is very prudent, including whatever is happening in NCR and other cities। So when I meet these promoters, these developers, I see a remarkable difference। People are very prudent, they are talking sense, and they are also then taking a decision wisely कि मुझे करना भी है कि नहीं। मार्केट इज मोर मैच्योर नाउ। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई, अब आप ब्रांडेड रेजिडेंसेस की बात करें जैसे आजकल हर आदमी बात कर रहा है, कोई ऐसा नहीं कि 100 आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। उसका रीजन भी है। देखिए, एक है रेरा रेगुलेशन, जो अपने आप में आपको एक बहुत बड़ा एनवेलप देता है और बहुत सारी चीजें नहीं करने देता, रेगुलेशन है। ब्रांडेड रेजिडेंसेस उसके ऊपर एक और लेयर है रेगुलेशन की। हर किसी के बस की बात नहीं है वो रेगुलेशन के साथ खेलना। वो आपको, you know, you have to time your sale, you have to look at your collaterals, you know, you can't keep the club to you, all these things। जो, you know, particularly NCR के डेवलपर्स को क्लब बड़ा प्यारा होता है, क्लब नहीं मैं दूंगा, देना है भाई, कन्वे करना पड़ेगा, बिकॉज वो मैनेज करेंगे, आप नहीं कर सकते, राइट। तो ये सब जो एक्सपीरियंसेस होटल से आते हैं वही इसमें भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड सप्लाई आ जाएगी, टॉक रहेगी, फिर धीरे धीरे डस्ट विल सेटल। Even if we see the Trump Towers, नॉर्थ अमेरिका के बाद सबसे बड़ा पोर्टफोलियो इनका इंडिया में है। सो देयर इज कंजम्पशन नाउ आल्सो, दे आर लॉन्चिंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट सिटीज। सो यस, ऑफ कोर्स फ्यूचर ब्रांडेड एजेंसी का वी बिलीव दैट इट विल बी वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, व्हेनेवर वी हैव द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ एयरपोर्ट के साथ हमेशा से एक ये बड़ी अच्छी चीज़ है, जहाँ पे भी एक नया एयरपोर्ट खुलेगा, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, इट ओपन अप्स अ न्यू गेट। Indeed। So I want to understand from the hospitality sector, so what a new airport
like recently we will see on Yamuna Expressway also Noida International Airport बन रहा है, ऐसे ही गुजरात में धुलेड़ा में एक एयरपोर्ट बन रहा है. So होटल इंडस्ट्री इसे कैसे देखती है? Oh, it's a big boon. Again, इकोसिस्टम की बात करूंगा. जब हमने एरोसिटी में JLL इन्वॉल्व था, दिल्ली एरोसिटी में, जो आप आज 5,000 rooms हैं. It is a big example. It's a big example. It's a showcase. We sell Dwarka Expressway on Aerocity. Right. I'll talk a little bit about it. When in 2007-8, I was part of JLL's hotels business, and we had just started up the shop here. And GMR approached, it went to many other consultants. It approached us as well, and we were shortlisted and mandated by GMR to monetize these land parcels. Wow. Right? Because this was complementary airport infrastructure. एयरपोर्ट ऑपरेटर का काम है एयरपोर्ट चलाना. उसके इर्द गिर्द की रियल एस्टेट चलाना नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर है. गवर्नमेंट्स भी अब ये बात समझ गई, एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट is best a facilitator and continues to be owner of real estate and assets. Right. But then it is allowing investors to come in and make money and generate employment. Ultimately तो गोल तो यही है. तो एरोसिटी को जब हम लेकर गए मार्केट में, तो सबने कहा जी ये तो नहीं चलेगी. क्यों नहीं चलेगी? बिकॉज जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे निकलें बाहर और आप लेफ्ट ही जाते हो, राइट तो जाते नहीं, क्योंकि सब कनॉट प्लेस जाते थे, और बिकॉज गवर्नमेंट काम से आए या जुडिशरी के काम से आए या जिस भी काम से आए आप दिल्ली में, आप एयरपोर्ट से उतरे आप लेफ्ट मुड़ते थे. लेकिन कॉर्पोरेट गुड़गांव, सब कॉर्पोरेट इंडस्ट्री सब गुड़गांव में बसनी शुरू हो गई, तो लोगों ने राइट लेना शुरू कर दिया. तो ये उन दिनों की बात है जब मैक्सिमम लेफ्ट जाते थे, थोड़े से राइट जाते थे. नहीं ये तो नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि जिसने लेफ्ट जाना है वो लेफ्ट जाएगा, जिसने राइट जाना है वो राइट जाएगा. तो होटल्स भी वहीं आएंगे ना, यहाँ क्या करेंगे? राइट. हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एरोसिटी अपने आप में एक ग्लोबली सक्सेसफुल मॉडल है. अगर ये बाहर देशों में चल सकता है और फंडामेंटली चल सकता है, तो हमें यहाँ क्यों नहीं चलेगा? और देखिए, रेस्ट इज हिस्ट्री. अब उस टाइम पे I was part of the investment deal team which we were working, and I was very junior in that time in that team. But हम लोग बिजनेस मॉडल्स बनाते थे, फाइनेंशियल मॉडल बनाते थे, फिर हम इन्वेस्टर्स के पास जाते थे. अब देखिए, ना वहाँ ताज है, ना ओबरॉय है, ना ITC है, ना ललित है, ना पार्क होटल है. इंडियन ब्रांड तो कोई भी नहीं आया. क्यों? क्योंकि उन्होंने बेट नहीं ली, लेकिन बाकियों ने ली. तो हम Tier 2 के पास गए, हम बाकी इन्वेस्टर्स के पास गए कि क्यों ना आप कुछ बनाओ और मैरियट ले आओ. थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स, आप कुछ बनाओ और हायट ले आओ. राइट. तो धीरे धीरे वो पूरा इकोसिस्टम बना, कामयाब है. आज एरोसिटी बेस्ट बिजनेस होटल्स ऑफ इंडिया, बल्ले लाइफ एग्जांपल. राइट. गुड ऑक्यूपेंसी, ग्रेट. अब उसके बाद सिमिलरली GMR ने जब अगला एयरपोर्ट गोवा उनको मिला, और गोवा में जब फाइनली प्लेन उतरा, मोपा, तो GMR, I feel very proud and privileged because GMR considers us as their very valuable partners, and we have also delivered. So they considered us again, and we took it to the market. अब आज देखिए, मैंने ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि जब ये एयरपोर्ट ओपन हो जाएगा, जिस दिन प्लेन उतर जाएगा, उस दिन हम इसको मार्केट में लेकर के चलेंगे, और एरोसिटी को उसी तरह से लेकर चलेंगे जैसे हम एरोसिटी दिल्ली को लेकर गए थे आज से 15 साल पहले. और GMR ने हमें, और गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, बिकॉज दैट्स आल्सो JV बिटवीन गवर्नमेंट एंड GMR, राइट, लाइक दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट हियर, बिटवीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड GMR. सो फॉर्मूला सेम है, डील का प्रियम्बल सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लीज होल्ड है. तो हम फिर उतरे 13 दिसंबर 2022 को, शायद 2023 में, जब पहली बार प्लेन उतरा मिस्टर मोदी का और एयरपोर्ट इनॉग्रेट हुआ. हमने 5 जनवरी आफ्टर दैट हम मार्केट में लेकर के उतरे. एंड आई वुड प्राउडली से इन द लास्ट 18 months वी हैव मोनेटाइज्ड एरोसिटी. अब हमें दिल्ली जितना कन्विंस नहीं करना पड़ा लोगों को, क्योंकि लोगों को समझ आ गया
Even I'll say half of the Goa has been sold just because of Mopa Mopa. International And you Airport. see there are 52 flights which are landing, right? And then there is so much of airlift. Naturally ये सारा इकोसिस्टम उसी हिसाब से चलता है, जैसे Right. आपने कहा। तो होटल्स को तो एडवांटेज है, अब वो होटल बनने शुरू होंगे वहाँ पे, राइट? तो और गोवा, देखिए, लोग फिर क्वेश्चन करते थे कि दिल्ली तो चलो बिजनेस है जी, तो ये तो चलना ही था। अच्छा, पर 15 साल पहले तो आपने नहीं कहा था चलना था, अब कैसे? अब दिख गया ना लोगों को। अब जब हम गोवा लेकर उतरे तो अरे नहीं, दिल्ली तो बिजनेस है, ये तो लेजर है, यहाँ क्यों चलेगा? 4 प्लॉट बिके, ताज भी आया अपनी बैलेंस शीट पे, बना रहे हैं, और इट्स बीन द एंकर इन्वेस्टर देयर। और सिमिलरली देयर आर अदर 3 or 4 वेरी रिनाउंड इन्वेस्टर्स हु हैव टेकन इट अप। नाउ ये क्यों चलेगा? बिकॉज लेजर है, गोवा ऑल ईयर राउंड डेस्टिनेशन है, तो लोग तो आएंगे, प्लेन्स तो उतर रहे हैं, तो उसका इर्द गिर्द जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो अब लेजर के अराउंड बन रहा है। उसमें हम कोई ऑफिसेज नहीं बना रहे, उसमें शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट बन रही है, उसमें एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट बन रही है, उसमें हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट बन रही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मिक्स और इकोसिस्टम उस हिसाब से डेवलप हो रहा है। तो एयरपोर्ट के साथ साथ हम जब इंडस्ट्रियल हब्स भी देखते हैं, सो यमुना एक्सप्रेसवे इज अ डिफरेंट स्टोरी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ वहाँ इंडस्ट्रियल हब भी बन रहा है। देन अमरावती इज वन ऑफ द एग्जांपल, अ न्यूली डेवलप्ड सिटी। हमारे यहाँ गुड़गांव के पास एक एरिया डेवलप हो रहा है, IMT खड़कोदा, विच आई फील लाइक स्पेशली फॉर द होटल्स, बिकॉज मारुति अपना सबसे बड़ा प्लांट लगा रही है, सो टू एंड फ्रो लोग बहुत आने हैं वहाँ पर। सो व्हाट यू थिंक ऑल दीज इंडस्ट्रियल हब्स एंड इवन धुलेड़ा, Gujarat, so what kind of scope hotel industry has in these industrial hubs? Again, Upcoming industrial hubs. again there is scope. Again, as I said, maybe I would repeat, the investment follows the traveler. कैपिटल जो है ना, वो हमेशा डिमांड को फॉलो करती है, राइट? तो जब अभी आपने जो बात कही बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वो डिमांड अगर किसी फॉर्म में जनरेट हो रही है तो उसके लिए अल्टीमेटली उसको सर्विस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो आएगा, होटल्स भी आएंगे। अब देखना ये होगा कि वो कस्टमर कौन है। वो कस्टमर अगर इंडस्ट्रियल कस्टमर है, वो सैलरीड एग्जीक्यूटिव है, तो उसकी एक रूम रेट की जो कैपेसिटी है ना पे करने की, वो उसकी कंपनी डिफाइन करती है। तो हो सकता है उसका कैप 5,000 रुपया हो रात का, तो 5,000 के लिए वो मिड मार्केट होटल ही आएगा, वहाँ पे कोई लग्जरी होटल नहीं आएगा, राइट? तो वो इर्द गिर्द उसी तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, एंड डेफिनेटली फंडामेंटली स्ट्रांग है तो ज़रूर होगा। अनदर एग्जाम्पल, ग्रेट एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, एंड वी आर affiliated and associated with that now, यशोभूमि। जो गवर्नमेंट ने यशोभूमि सेंटर बनाया है on the outskirts of Dwarka, on the edge of the airport, is a phenomenal infrastructure, yes, which they created during G20. And ये जो roads अभी आपको नहीं दिख रही हैं और वो tunnels अभी बंद हैं, अंदर से पूरी तरह से बन चुकी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है to open, right? Once that all opens, to get into यशोभूमि from Gurgaon or from the airport side is going to be seamless, right? तो उसके आसपास अब JLL is mandated to take 21 hotel plots to market, in phases. So उसमें commercial है, उसमें retail है, उसमें hotels हैं, उसमें service departments हैं. Again a classic example of captive demand. जब इतना बड़ा convention center बन गया, उसके इर्द गिर्द होटल्स भी आएंगे, ऑफिसेज भी आएंगे, रिटेल भी होगी, लोग तो आएंगे, एंड इट इज हैंड ऑन हैंड। रेजिडेंशियल के भी रेट बढ़ते हैं, वेयर एयरपोर्ट और होटल, इवन दिस इज वेल सेड, कहीं पे किसी सेक्टर में भी 5 स्टार होटल आ जाता है तो उसके आसपास के प्लॉट्स के भी रेट बढ़ जाते हैं। हेलो इफेक्ट, हम लोग बोलते हैं हेलो yes, इफेक्ट। yes. तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि 5 स्टार होटल्स बनाते रहिए, राइट, और इसी तरह इकोनॉमी को चलाते रहिए। राइट। दिस इज गोइंग टू बी, यशोभूमि इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट BKC, like BKC Bombay, in Mumbai what Geo Center has created. This is going to be the next story, exploding. And again I will appeal to the investors, अगर आप अभी भी क्वेश्चन कर रहे हो, अरे यार ये थोड़ी होगा जो आपने एरोसिटी में करा था, you will miss the bus again. So this is that time one should, prudently look into it. Okay. So next thing which comes into our mind is जो सबसे बड़ा रूट कॉज भी लगता है मुझे कहीं ना कहीं, आज टूरिज्म इंडस्ट्री के फिगर्स देखते हैं हम। I'll come back on Goa. So last year तक 2024 एंड तक that tourism is declining. गोवा की स्टोरी थोड़ी सी फिजल आउट होती हुई दिखी, एंड वी ऑल नो दिस थिंग दैट साउथ ईस्ट एशिया
whether it is Bangkok, whether it is Vietnam, gives more services, is more cheaper. So I really want to hear the Goa story कि क्या occupancy rate कम हुआ है, tourist decline हुए हैं, and अगर ऐसा हुआ है तो how hoteliers are matching up the things. I would say that bad news travels faster, Right. right? तो जब गुड न्यूज़ थी तो कोई बात नहीं करता था. हम्म, अब बैड न्यूज़ ज़रा सी आई बिकॉज़ क्रिसमस न्यू ईयर पे थोड़ा सा क्रैश आया, हम्म, तो सब बात कर रहे हैं और हम्म, बहुत सारा लिखा गया इसके बारे में. हम्म, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं उन दिनों वहीं था. okay. जी. तो इम्पैक्ट तो था. अच्छा, रियल टाइम एक्सपीरियंस रियल क्या था टाइम आपका? एक्सपीरियंस, हाँ, मतलब सत्य घटनाओं पर आधारित है. ओके. तो इम्पैक्ट तो था. दिल्ली से जो प्लेन मोपा उतरता है हम्म, 28th है 29th दिसंबर को, वो प्लेन 70% ऑक्यूपाइड है, 30% खाली है. एट दैट पीक टाइम, हम्म, गोवा पीक मार्केट, हम्म, पीक टाइम, क्वेश्चनेबल तो है, हम्म, राइट? सिमिलरली व्हेन यू गेट ऑन द रोड यू आर आल्सो फियरिंग कि यार गलती कर दी, गोवा आ गए, यहाँ ट्रैफिक में फंस जाएंगे, एटसेट्रा. रोड्स वर रिलेटिवली खाली. right. Hotels had put up the prices and the sticker price was high. हम्म, उस वजह से क्या होता है, जब आप कस्टमर एज अ ट्रैवलर बात करूं, forget my consulting hat and my brokerage hat and my hotelier hat, मैं एज अ रूम गेस्ट हूँ. मैं अपना बजट का कैलकुलेशन कहाँ से शुरू करता हूँ? घर से जब हम निकलेंगे, हमारी टैक्सी जो हमें एयरपोर्ट लेके जाएगी, एयरपोर्ट पे जो हम खाना पीना खाएंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद हम Flight. टिकट लेंगे, फ्लाइट से हम उतरेंगे, फिर वो टैक्सी जो हमें होटल लेके जाएगी, फिर होटल का स्टे, और फिर जो इर्द गिर्द हम रोज रात को खाएंगे पिएंगे. जब आप ये सारा सम करते हो ना, तो वो नंबर रेवेन्यू मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ऑफ द एस्टिमेट एंड ऑफ द मार्केट चला गया था. और इसमें सबकी गलती है, क्योंकि हर आदमी ना रेवेन्यू मैनेजमेंट पे इंडिपेंडेंटली देखता है अपने आप को. एयरलाइन ने अपना देखा, होटल्स ने अपना देखा, और सब ने एस्टिमेट कर दिया लोग तो आएंगे. Why flights are expensive? Domestic होते हुए भी. मैं वही कह रहा हूँ, you know, I think this is not good news to outprice yourself. Never. This story never plays out unless you are luxury. Luxury में क्या होता है ना, luxury is bought, is never sold. ये कहावत है. आप कुछ लग्जरी खरीदने जाते हैं तो कोई आपको पीछे पीछे नहीं भागता, ले लो ले लो ले लो. आप खरीदते हो, आपका मन है, आपकी एस्पिरेशन, आप लेने गए. लग्जरी में तो आप अपने आप को इस तरह से प्राइस कर सकते हो, लेकिन हर रोज की जिंदगी में नहीं कर सकते. यू हैव टू बी रैशनल. तो एयरलाइंस ने अपने आप को आउट प्राइस कर दिया, होटल्स ने अपने आप को आउट प्राइस कर दिया, जो वहाँ टैक्सी ड्राइवर्स ने, उन्होंने अपने आप को आउट प्राइस कर दिया. तो ओवरऑल जो मेरा बजट है ना, वो कहीं से कहीं पहुंच गया. तो फिर मैंने अपने दोस्त को कहा, और उसने अपने दोस्त को कहा, एंड द वर्ड स्प्रेड्स कि यार क्यों जाएं गोवा, थाईलैंड चलते हैं, बाकू चलते हैं. वही इंडिगो का प्लेन आपको 2.5-3 घंटे वहां ले जाएगा, वो 3.5-4 घंटे वहां ले जाएगा. आप यूरोप का मजा कर लाओगे, एक तरह से फील आ जाएगी, वाइब आ जाएगी. हमें क्यों करना? लीविंग वेदर असाइड, unless you want to really dip into the ocean. The people who go to Goa do not dip into the ocean. Max they dip into the pool. They'll say यार मैं जयपुर चले जाता हूँ, इससे अच्छा पूल में वहां चले जाऊं. तो ये आई थिंक गड़बड़ हुई है. लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि गोवा also had the best monsoon in 2024. It was the best season of monsoon that Goa ever had in its history. Because again, why? Because Goa priced itself carefully, thinking कि monsoon है, low season है, packages बना दो, make it more valuable for customers. It was way more cheaper. Valuable for customer. I don't know cheap या expensive, मुझे नहीं पता, लेकिन valuable था, value for money था. जैसे आपने value for money करा, लोग आने शुरू हो गए. वही गलती गोवा ने शायद अक्टूबर से करनी शुरू कर दी. और अब ऐसा नहीं है कि गोवा इज आउट ऑफ वोग, इज आउट ऑफ फैशन. नो, इट इज स्टिल योर फ्रंटियर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन दिस कंट्री. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी हैव अ लवली कोस्ट लाइन ऑफ some 6,000 odd kilometers. Beautiful beaches. But none compares to Goa because of the sand quality, because of the depth of the ocean, the ease of getting into the ocean, and you know, there is no rocky bed when you get in the ocean, right?
हर जगह ओशन की और सी की और टेक्सचर जो है बड़ा अलग है. तो गोवा विल कंटिन्यू टू ऑफर दैट natural advantage to the customer as long as the whole travel ecosystem, hotels, airlines, and most importantly, the travel partners there. Goa is the only state which doesn't have Ola and Uber. The biggest problem. So you are on their This mercy. kills the experience, yes. And you are on their mercy. Now, fine. You may be, there must be some reasons and compelling reasons. Ke nahi ji, we have to take care of our own people and our own ways and means. But सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस बिहेवियर नहीं छोड़ सकते आप. कंफर्ट नहीं है तो nobody will go. कन्वीनियंस नहीं. आप जहां आपने कन्वीनियंस और सर्विस के अगेंस्ट जाके खड़े हुए, देन यू आर इन द रॉन्ग इंडस्ट्री. राइट. देन फिर होटल्स आपके लिए या ट्रैवल आपके लिए नहीं है. फिर आप स्टील करो, फिर आप फैक्ट्रियां बनाओ, फिर आप माइनिंग करो, उसमें तो कोई नहीं है रोक. पर ट्रैवल इंडस्ट्री में हो तो आपको उस तरह से सोशल बिहेवियर करना पड़ेगा. और जब ये चीजें आप देखोगे, given the advantage that Goa has, it's not going to go anywhere. I'm telling you, for us at JLL, Goa was the best market in the last 2 years. We've done 7 transactions in Goa. Wow. Nobody else has ever managed to do it. Hotels only, I'm saying. Right? There's a reason there is a reason behind it. हमने 7 transactions करे मतलब क्या? कि कोई तो पैसा खर्चना चाह रहा है, कोई तो बेच रहा है, फ्यूचर देख रहा है कोई, तो फ्यूचर कोई तो देख रहा है. तो it's a great market. डरने वाली कोई बात नहीं है. तो गोवा से अब थोड़ा सा ग्लोबली चलते हैं, देन वी विल कम ऑन रैपिड फायर राउंड. सो व्हेन वी सी ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, नाउ द स्टेचर ऑफ इंडिया इज वे टू हाई. और सबसे पहले मेरा क्वेश्चन तो ये है, व्हिच कंट्री इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ होटल, इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, एंड देन फॉलोड बाय अनदर क्वेश्चन, व्हाट इंडिया शुड लर्न फ्रॉम दैट कंट्री. So after COVID, countries opened at various points. Somebody opened up sooner, somebody later. Maldives did fantastic. Maldives opened up very quickly because it was one island, one resort, very captive. Tourism-based economy. Tourism-based. And after COVID, आपको एक सिक्योरिटी चाहिए होती थी ट्रैवल की. तो आप कहते थे जी आप एक आइलैंड पे पहुंच गए, कैप्टिव हो, अब आपको वायरस से और दुनिया से लेना देना नहीं. So Maldives opened very early and did very well. Followed by Dubai. Followed by India. In many ways, India opened up quickly, and domestic tourism immediately started firing. Then obviously Bali opened, Thailand opened, Singapore opened. So all these markets at various points in time opened up and did very well. In terms of अगर मैं होटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं और होटल मार्केट्स जो परफॉर्म कर रही हैं, which is also an indicator of why investments are happening, Japan is doing phenomenally well. Currency depreciation की बात कर लो, valuations की बात कर लो, demand की बात कर लो. That is because of scarcity of land? नहीं, it is because of the yield that investors get. Okay. वहाँ पे cost Spending बहुत ज़्यादा. देखो cost of debt तो है नहीं. तो अगर आपको 2-3% yield भी मिलती है तो ट्रांजैक्शन हो जाता है. और वो उससे तो ज़्यादा ही मिल रही है बिकॉज मार्केट्स परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही हैं. Maldives, as I said, performed very well. Dubai, fantastic market. London, brilliant, out of the park. They've hit the ball out of the park, right? US came later to the party, but again, the important business centers are firing well. How's Thailand doing? Oh, phenomenally well. And I think you asked me the question, what should we learn? I think we should learn, as I said, we should be more business-minded, like Thailand is. They know that there is a strength. They work towards it. Look at Maldives. They understand that it is a strength. They work towards it. Dubai, they've become the center of the world. Look what Emirates has done, not only to Dubai, but also to the rest of the world. So that is a great learning lesson, that if you have a great airline, you have a great industry. And that airline itself becomes the feeder. So the lessons are that you have to really learn from these little examples and build a holistic story around it. I don't think हम अपने आप को sell कर पाते हैं. हम अपनी उलझनों में लगे रहते हैं. And then we have our own issues to fight. नहीं यार,
गोवा ही चलते हैं ले दे के, फिर गोवा ही चले जाते हो, राइट? तो आई थिंक even I feel ease of doing business, ease of travel has played a vital role. Now Dubai is new local. या अब दुबई लगता ही नहीं कि इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो. नहीं, मैं तो बोलता हूँ इट इज एंड वी एट JLL वी से इट इज इंडियाज बेस्ट सिटी टू गो इन एंड लिव फॉर, Right. इंडियाज बेस्ट सिटी। Right. अब वो इतना अपना लगता है। Hmm. तो बट ये ज़रूर है कि ईज़ ऑफ बिजनेस बड़ा है। अगेन गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्टिव एक्शंस लिए हैं और कुछ काफ़ी हद तक फ़र्क तो पड़ा है, बट आई थिंक होलिस्टिकली पॉलिटिकल विल के साथ होलिस्टिकल चीज़ें करने का जो लर्निंग है हमें वो बैंकॉक और बाली। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है, आपको पता है बैंकॉक में कितने ब्रांडेड होटल रूम्स हैं? 3 to 5 star. 3 to 5 स्टार। ब्रांडेड मतलब 3 to 5 स्टार। इसमें मैं अनब्रांडेड होटल्स जैसे हमारे पहाड़गंज में या महिपालपुर में या बॉम्बे रेलवे स्टेशन पे दादर में, मैं वो होटल्स नहीं काउंट कर रहा, मैं ओयो भी नहीं काउंट कर रहा, मैं ब्रांडेड रेगुलेटेड सप्लाई की बात कर रहा हूँ। 25 to 30,000. 125,000। Oh my तो goodness. जितना आपने कहा उससे 2.5 गुना ज्यादा, Okay. एक बैंकॉक अलोन में, ठीक है? Okay. अब आपको पता है कि दुबई में कितने हैं? अब बैंकॉक में इतने हैं तो दुबई में मुझे लगता है इससे डबल तो होने चाहिए. डबल Down 2 नहीं, lakh. डबल तो नहीं है, बट अबाउट 160-170,000, Okay. राइट? Okay. Closer. क्लोजर। बट दुबई कितना है देखिए, अगर देखा जाए तो हाँ. शेख जायद रोड से आप ऊपर से हाँ. नीचे चले जाए, जुमेरा चले जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, Right. 30 kilometer radius. बस, राइट? हम्म. अब आप बताइए इंडिया में कितने हैं? India में 3 to India is a vast country, so I'll say around 3 lakh. 2 लाख Oh. 20,000, 2,20,000 पूरे रूम्स इंडिया हैं में? पूरे इंडिया में। एक बैंकॉक में 1.25 लाख हैं, दुबई में लगभग 1,70,000 Oh है, my और हमारे goodness. पास 2,20,000। इसमें सारी सिटीज आए थे. सारी सिटीज, वो जो हमने 7 सिटीज 1 और 4 वो और टीयर 2 टीयर 3 सारी कैपिटल सिटी सब सब कुछ. सब डाल दो जी, आप सब डाल दो, सबअर्बन अर्बन। तो जब इन्वेस्टर्स या लोग मेरे से पूछते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, के स्टॉक प्राइस कहाँ जा रहा है, देखिए स्टॉक का क्या हो रहा है, अब क्या लगता है और कितने बना पाएंगे होटल्स, पॉइंट इज कि देयर इज अ लॉट मोर पोटेंशियल। यू हैव टू सी द वाइडर पर्सपेक्टिव. आइडियली हमें कम से कम 10 गुना तो होना चाहिए था बैंकॉक का, कम से कम, लेकिन वो तो नहीं है। तो अब बन रहे हैं। तो जब लोग बोलते हैं ओवर सप्लाई होगी, आंसर इज यस एंड नो। ओवर सप्लाई कुछ एरियाज में हो सकती है जो जहाँ पे सब चले गए, हर्ड मेंटालिटी कह लो, लेकिन अब ना ज्यादातर सप्लाई स्ट्रेटिफाइड हो रही है, जगह जगह टीयर 2 टाउन्स में जा रही है, टीयर 3 टाउन्स में जा रही है, बैलेंस आउट हो रही है, बैलेंस आउट हो रही है। तो देयर इज नथिंग टू वरी एज अ होटल इन्वेस्टर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर हु हैज टेकन अप होटल स्टॉक्स, उसको भी घबराने की बात नहीं। ठीक है यार, वो स्टॉक मार्केट ना अपने आप को प्राइस इन प्राइस आउट करती है, फंडामेंटल ठीक है। बाकी चीजें स्टॉक मार्केट को मैं बहुत अच्छे से समझता नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी समझता है, लेकिन फ्रॉम अ होटल फंडामेंटल डिमांड पर्सपेक्टिव एंड सप्लाई पर्सपेक्टिव, इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी इन। So now we will quickly start rapid fire round. हैम्पर मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। So first question, who are those 1 or 2 people who have helped you shape your career? Shri Anuj Puri, Okay. chairman now of Anarock, but erstwhile chairman of JLL, Right. and late Shri PRS Oberoi. Wow. Okay. Second question, if you have to stay in decades old vintage property versus a plush modern hotel with a great view, which one would you choose? Plush modern hotel with a great view. No heritage property? हेरिटेज में सिचुएशन सिर्फ ये होती है कि कभी कभी ना इनकन्वीनियंस होती है, वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, और हम लोग यार अल्टीमेटली हेरिटेज घरों में रहे हैं, कई पुरानी प्रॉपर्टीज, पुराने घर लगते हैं, बचपन की यादें हैं ये। नई अच्छी मॉडर्न चीजें देखने का शौक है, जब बाहर जाके देखते हैं तो यहाँ लगता है यार यहाँ भी मिलनी चाहिए, तो आई लव इट। राइट, ओके। बीच हॉलिडे इन इंडिया, गोवा, केरला, अंडमान और लक्षद्वीप? गोवा। गोवा, ओके। वो इसलिए नहीं कि मैंने 7 ट्रांजैक्शन कर लिए हैं, बट जेन्युइनली आई थिंक देयर इज सो मच वैरायटी, राइट, एंड इट्स ईज ऑफ गेटिंग देयर, राइट, कल्चर, बीचेस, फूड, एंड या एवरी टाइम इट हैज समथिंग एल्स टू ऑफर। राइट। So fourth question, with so many amazing homestays, villas on rent, Airbnb options available in most of the tourist cities, do you think that hotel demand can go down just because of Airbnb? Yes, can, but depends कि Airbnb का लेवल
मेंटेन हो पाता है कि नहीं. हम्म. सो मार्केट टू मार्केट डिपेंड करता है. हम्म. बट फॉर एग्जांपल गोवा जैसी मार्केट है उसमें दोनों चलते हैं. हम्म. राजस्थान वाली मार्केट है उसमें होटल ही चलते हैं. हम्म. जयपुर, उदयपुर, रणथंभौर फॉर हम्म. एग्जांपल होटल ही चलेगा, एयरबीएनबी नहीं चलेगा. Okay. So, a hotel or a branded agency in 2025, where would an investor put his money? होटल, सी ब्रांडेड रेजिडेंसेज ना इज अ लॉट ऑफ टॉक, बट एक्शन करने में ना टाइम लगेगा. हम्म. सो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस तो आप उसमें घुसेंगे. बट होटल तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है. Okay. Ayodhya or Prayagraj, which religious site has potential for hospitality growth? बनारस, Oh, वाराणसी, wow. Okay. The oldest anytime, city. oldest city, anytime, and the infrastructure growth that Shri Modi has done there, after adopting that in his as his constituency is amazing. Wow. अगर आप बनारस पहले नहीं गए और अब जाते हैं तो आप कंपेयर नहीं कर पाते. Okay. पर अगर आप पहले गए हैं और अब जाते हो, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस एंड इट्स फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट. Okay. If you have to invest in a hotel project in India today, which region or a city would you choose? Only one option you have to give. बैंगलोर. Okay. Next, what is the one thing you think is missing in Indian hospitality industry? ये दोबारा कर लेते हैं. What is the one thing you think? What is the one thing you think? What is the one thing you think is missing in Indian hospitality industry? आई थिंक फ्रॉम अ, अगर सिर्फ एक बात बोलूं तो शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है. कम होना चाहिए. कम होना चाहिए. कम होना चाहिए. होटल बनने आसान हो जाएंगे. हम्म. इन्वेस्टर थोड़ा ज़्यादा कीन हो जाएगा. हम्म. बट सर्विस स्टैंडर्ड वाइज, गेस्ट एक्सपीरियंस वाइज हम में कोई कमी नहीं है. हम दुनिया से बहुत ऊपर है. एक सिंगल गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएटिव जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा बूस्ट कर देगा होटल इंडस्ट्री? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा दो. अच्छा. इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दो. हमें जो होटल बनाने के लिए लोन मिलता है, हमें उसको 10 साल में चुकाना पड़ता है, उसको 15 साल में चुकाने की मोहलत दे दो. हम्म. उसको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दोगे तो होगा क्या कि इन्वेस्टर का जो एपेटाइट है होटल बनाने का वो बढ़ जाएगा. उससे ग्रोथ होगी, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? इकोनॉमी को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना. इतनी पॉपुलेशन है, उसको वी नीड टू पुट दैट टू वर्क. So let's put our money to work. Let's put our people to work by doing that. Right. So last question, ending with an interesting one. What do you like more, a coffee with current types hosting on stage or more private one-on-one discussion like us? So you can share. I have seen many of your events, anchoring events especially. या इसमें थोड़ा ना हमारा रोल चेंज हो गया है. तो मेरे को आपसे सीखने को बहुत मिला है. अरे मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क कर, प्रिपेयर कर, सबको क्वेश्चन भेजता हूँ. आपने तो कुछ भेजा ही नहीं. हम आए, बैठे और हमने बातचीत शुरू करी. आई थिंक दिस ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन, whatever you've done, I've loved it. Thank you very much. And कॉफी विद करण कभी गया नहीं. देखने में तो इंटरेस्टिंग लगता है. आप अगली दफे और किसी को ले आओ, ऐसे थोड़ा वाद विवाद करेंगे और फिर उसको भी मजा करेंगे. Right, sir. Thank you so much for lovely conversation. Thank you. I guess A to Z समझा आज हमने होटल इंडस्ट्री का. So इतना वास्ट कंटेंट आप देने के लिए थैंक यू सो मच और मिलते रहेंगे सर. थैंक यू. एंड मैं अपना मग साइन कर सकता हूँ? Yes, yes, please. थैंक यू. Thank you.